اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی حال پر۔ دا نالج فیکٹری کے ساتھیوں السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، الومیناٹی ایجنڈا اور بے بس انسانیت آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے نئے آنے والے معزز ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی علمی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کرونا وائرس ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ کاروبار حیات بند ہو چکا، تجارت، تعلیم، مذہبی اجتماعات، سیاحت، غرض تمام شعبہ ہے زندگی پوز کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی شدید ذہنی دباؤ، خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ بیماری کی نہ تو علامات واضح ہیں نہ ہی وجوہات۔ بیماری کا ٹیسٹ بھی ود پریسیجن تاحال ممکن نہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک تو دور، ترقی یافتہ ممالک بھی اس وائرس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا یہ کرونا وائرس واقعی ایک وبا ہے یا بائیو ٹیررزم ہے؟ یہ طاعون جیسی بیماریاں نیچرلی پیدا ہوئیں یا یہ بائیولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے؟ یہ ایک سانحہ ہے یا باقاعدہ پلانڈ سازش ہے؟ پہلی بھی متعدد بات عرض کر چکا ہوں کہ میں ایک کانسپیریسی تھیورسٹ ہوں۔ میری رائے سے آپ کا اتفاق ضروری نہیں، تاہم اپنی گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ معزز خواتین و حضرات، میرے نزدیک موجودہ وبا کرونا وائرس ایک مکمل پلان کے تحت دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومیناٹی 1776 کا ہاتھ ہے۔ الومیناٹی اور فری میسن وغیرہ کی تفصیلات کسی اور وقت، مگر مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ یہ عالمی خفیہ شیطانی تنظیم ہے۔ اس کو چند انتہائی طاقتور خاندان پس پردہ رہ کر چلا رہے ہیں: روتھسچائلڈ، روک فلر خاندان، برطانوی شاہد خاندان وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اس کی ہدایات پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ بظاہر یہودی ہیں اور کچھ عیسائی۔ اس تنظیم کا سب سے اہم مقصد یہودیوں اور یہودیوں نوازوں مذہب بیزار عیسائیوں کی مدد سے دجال کی آمد اور اس کے مطلق العنان حکمرانی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے جس کے پیچھے بہت سے حصے اور بہت سے سٹیپس ہیں، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اور اس پورے منصوبے کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ ریلیجن کا نفاذ، دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا نفاذ، اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پہ اتفاق کا قیام، یعنی دجال یا اینٹی کرائسٹ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کروانا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پلان کو مزید چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے، اور یہ وہی منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق کرونا وائرس وبا سے ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک متعدد فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ کم آبادی کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ بعد ازاں چپس انسٹال کر کے ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا زیادہ آبادی کی بنسبت بہت آسان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ زیادہ آبادی کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے نفسیاتی طور پہ تیار کرنا مشکل ہے بنسبت کم آبادی کے۔ نیز کم آبادی پہ اپنا کلچر امپوز کرنا بھی زیادہ آبادی کی نسبت آسان عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ کم آبادی کی صورت میں پلانٹ ارتھ کی سٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی میں اضافہ ہو جائے گا، اور نیچرل ریسورسز پہ دباؤ کم ہو جائے گا، جو رولنگ ایلیٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا وائرسز اور جینیٹیکلی انجینئرڈ بیماریوں سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو ان کی نظر میں سوسائٹی پہ بوجھ ہیں یا جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے۔ اس انداز سے انہیں جوان طاقتور لیبر فورس لمبے عرصے تک میسر رہا کرے گی۔ اس نقطے پر مزید تحقیق کے لیے ٹرانس ہیومنزم پہ ریسرچ کیجیے۔ یوٹیوب پہ چند اہم ویڈیوز اس پہ موجود ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں علاقائی اور عالمی جنگیں، فاسٹ فوڈز اور کیمیکل زیادہ پیکڈ کھانے اور مشروبات کا استعمال عام کرنا، ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ ایفیکٹس والی ادویات کی ترویج،
जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए काहत साली, सैलाब बर्पा करना, पीने के पानी और अजनास की कमी वगैरह वगैरह। ये तो रही इल्यूमिनाटी की प्लानिंग। अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। मेरे नज़दीक इस वबा का पूरी दुनिया में फैलाव इस शैतानी प्लान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इससे कबल इबोला वायरस, डेंगू, हंटा वायरस, HIV, एंथ्रैक्स, रोटा वायरस, मर्स वायरस, सार्स वायरस का कामयाब तजर्बा किया जा चुका है। वबा के आगाज़ पे ही इंटरनेशनल मीडिया का इससे भरपूर कवरेज देना, सुर्खियों में लगाना, तमाम आलमी लीडरों का इस पे बात शुरू कर देना, लोगों को डराया और हरासा किया जाना, फ़ौरन लॉकडाउन, कर्फ्यू की बातें करना, ये सब वही SOPs हैं जो प्रोपोगंडा के लिए अफ़गानिस्तान और इराक हमले के वक्त इस्तेमाल किया गया। बीमारी फैलाने के साथ साथ इस आलमी लेवल के प्रोपोगंडा और मीडिया के ज़रिए हरासगी के पीछे भी एक अहम मकसद कार फरमा है, और वो मकसद था माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल, जो कि इल्यूमिनाटी के अहम तरीन हथियारों में से एक है। कोरोना वायरस वबा का फैलाव महज एक ड्रिल है, एक मशक है, एक तजर्बा है। असल वॉर अभी आगे है। मौजूदा वबा का फैलाया जाना और उसके हवाले से शदीद तरीन और शातराना मीडिया कैंपेन एक अहम तजर्बा है, जिससे मुस्तकबिल की मज़ीद प्लानिंग की जानी मकसूद है। मौजूदा वबा शायद 2-3 माह में कंट्रोल कर ली जाएगी और इस बार अमवात भी मजमूई तौर पे कम रहें, मगर मुस्तकबिल में ये तजर्बा मनसूबा साजों को मज़ीद बेहतर और ख़तरनाक प्लानिंग करने की सलाहियत दे देगा। इल्यूमिनाटी ने इस वायरस के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगे, ताहम इनका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नताइज ये होंगे। नाजरीन करम, पहली बात ये कि लोग बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बिल्कुल लाइलम निकले हैं और अभी तक इस बायो टेररिज्म को एक कुदरती वबा ही समझ रहे हैं, जो कि इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। दुनिया को लॉकडाउन करने का एक कामयाब तजर्बा कर लिया गया है और इस लॉकडाउन के नतीजे में लोगों को हुकूमती आज़ाद मीडिया और मजहबी रहनुमाओं के रद्द अमल को नोट कर लिया गया और अब इस लॉकडाउन के असरात जांचने जानेंगे और प्लानिंग की खामियों को दूर करने के लिए आइंदा मज़ीद बेहतर प्लान बनाया जाएगा। इस तजर्बे के ज़रिए करंटीना या क्वारंटाइन का कंसेप्ट एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया है और इन्हें शदीद ज़हनी मफलूज करके समझा दिया गया है। जब किसी को बीमार करार दे के क्वारंटाइन करने का हुक्म सादर होगा तो इस पर एहतजाज नहीं करना, चाहे वो शख्स जिस्मानी बीमार हो या जहनी बीमार। यूँ अजीज़ से अजीज़ तर रिश्तेदार को भी क्वारंटाइन होते देकर एहतजाज न करने की हमें इनडायरेक्टली तरबियत दे दी गई है। चुनाचे कल जब हम हमारे मजहबी पेशवाओं को, सियासी सूझ रखने वालों रहनुमाओं को जहनी बीमार करार देकर क्वारंटाइन किया जाएगा तो हम न सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज़ को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब उसे खुद साख्ता वायरस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वायरस के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम कोरोना वायरस ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग की बदौलत कतन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों पे कुछ दोस्तों को हंसी आ रही होगी, मगर इंतज़ार कीजिए, ऐसा चंद सालों चंद दहाइयों में होने वाला है। नाजरीन कराम, एक नतीजा ये भी हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाटी के मातहत काम करने वाली मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसे वायरस कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद कोई लैब इसका तौर नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबे साजों के लिए बहुत खुशाइंद है। सबसे अहम नतीजा ये है कि दुनिया अब इन्हीं चंद फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में है। दुनिया बेबसी के आलम में है। हुक्मरान भी बेबस होकर बिलबिला रहे हैं और घुटने टेक चुके हैं। आज पूरी दुनिया के अवाम और हुक्मरान इन मगरबी दुआ साज कंपनियों की तरफ हसरत, उम्मीद और आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब ऐलान होगा कि वबा का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस बात पे शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मुस्तकबिल के इस मंजर बारे जब वो पूरी दुनिया में मसनूई काहत बर्पा कर देंगे और सारा गल्ला और अजनास इन आलमी सरमायादारों के पास होगा और उनका सरबराह दज्जाल कहेगा, मुझे अपना रहनुमा मानो तब गज़ा दूंगा।
तो फिर कहेंगे अपना खुदा मानो, आर्टिफिशियल रेन बरसाऊंगा और अजनास दूंगा, क्या हसीन मंजर होगा। इस बात का इशारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी है कि ग़ज़ाई अजनास, बारिश, सब कुछ दज्जाल के कंट्रोल में चला जाएगा। लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च होगी। अगली जंगें जहाँ रवायती जंगी साजो सामान से लड़ी जाएंगी, वहाँ मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। याद रखें, आलमी शैतानी तंजीमों की भी बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, जिनमें से एक है मैस अवेयरनेस। जितने ज़्यादा लोग उनके शैतानी मंसूबों से अवेयर हो जाएंगे, उनके शैतानी मंसूबे इतनी ही जल्दी एक्सपोज होंगे और उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मज़हब से लगाव सतही मालूमात की बजाय हकीकी तालीमी शाऊर और क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत इन शैतानी पुजारियों की असल दुश्मन है। जिनसी बेराह रवी और मजहबी बेजारी, औरत की आज़ादी इनके अहम हथियार हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतुल्लिल आलमीन का इरशाद ग्रामी है कि दज्जाल तब ज़ाहिर होगा जब इसके बारे में बात करना कम कर दी जाएगी। यही सूरत हाल आज भी है। दज्जाल की बात की जाए, लोग उसे हंसी मज़ाक में उड़ा देते हैं, और ये वो फितना है जिसके शर से सहाबा और दीगर अंबिया तो एक तरफ, खुद अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। कोरोना वायरस वबा दज्जाल के शुरूर में से एक शर है, और ये महज एक झूठा लेबॉर्ट्री टेस्ट है। अभी असल वबाएं आना बाकी हैं। ये जो है बेबस हम महसूस कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। आने वाले दज्जाली फितने और शर इससे कहीं ज़्यादा होंगे। अंदाज़ा लगा लीजिए कि दज्जाल के शर कैसे होंगे और क्या वजह हुई होगी कि अंबिया ने भी उससे पनाह मांगी है। याद रखें, जब अल्लाह किसी कौम से नाराज़ होता है तो अपने ही मुनकरीन को बाज़ औक़ात इस चहेती कौम पर बतौर अज़ाब मुसल्लत कर देता है। कुरान इस बात का गवाह है, जहाँ बताया गया है कि बनी इसराइल की नाफरमानियों पे 2 मरतबा यरूशलेम को तबाही करवाई गई। एक मरतबा बेबीलोनियंस के हाथों और दूसरी दफ़ा रोमन्स के हाथों। और अल्लाह ने रूमी कुफ़ार को भी अपने बंदे कहकर जिक्र किया है, और हमने बनी इसराइल पे उनको मुसल्लत किया। इसलिए मौजूदा सूरत हाल को अल्लाह पाक की शदीद नाराज़गी समझने वाले भी दुरुस्त हैं। यकीनन हम गुनाहगारों पे बतौर अज़ाब ये वबा अपने मुनकरीन से मुसल्लत करवा दी गई है, और नेक लोगों पर बतौर आजमाइश। वल्लाह आलम। ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमान संभल जाएँ और एकजा हो जाएँ, तौबा करें और अपना रास्ता दुरुस्त करें, शार इस्लाम और अहकामात दीनिया की पाबंदी करें। अरब शहजादे यश और गैर ज़रूरी अमारात बनवाने की बजाय मुस्लिम ममालिक में तालीम व तहकीक पर दौलत खर्च करें, और यहाँ मेडिसिन, मेडिकल साइंस, बायो इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबों में महारत हासिल की जाए। और ऐसे दज्जाली हमलों से बचने नीज़ अवाम में अमूमन और मुसलमानों में खुसूसन क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली नेचुरल अद्वियात की तैयारी मुमकिन बनाई जाए, ताकि मुसलमानों को मग़रब की जानिब न देखना पड़े और सख्त तरीन हालात में भी शैतान के पुजारियों के सामने घुटने न टेकने पड़े। तब तक वेल्टन इल्यूमिनाटी, तुम इस तजर्बे में कामयाब रहे, मगर याद रखना तुम अपने मंसूबे बनाते रहो और अल्लाह अपने मंसूबे बनाता है, और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। आखिरी फतह खैर की होगी इंशाअल्लाह। वीडियो का ये मतलब नहीं कि मर्ज से एहतियात ना की जाए, ये मामला महज दुआओं पे छोड़ दिया जाए। गैर जानबदारान माहिरीन की सजेशन पर अमल करना, जान बचाने के लिए एहतियाती तदबीर अपनाना इंतहाई अहम है। इस वीडियो में कोरोना वायरस मामले का सिर्फ एक पहलू ज़ेरे बहस लाया गया है, इसके माशी, सियासी, दफाई पहलू अलग हैं। मेरी बातों पे हंसने वालों से गुजारिश है, महज एक दिन मुकम्मल फरागत के साथ बैठकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंटी क्राइस्ट और एंड ऑफ टाइम मौज़ूआत पर तहकीक कर लीजिए। नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का खुसूसी ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जल्द ही नई इल्मी और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।